Welcome to UPSC Game of Revision. Today we are going to start one new initiative, and in this we are going to see week 1 of January 2025 PIB section, all the important news from the PIB. As you all know, PIB a government source है और UPSC is directly taking मतलब making questions from the PIB, so it's very important source. And I faced some important news from the PIB from the week 1 of the January 2025. So let us see what is the important news from the January 2025. First news is India submits its fourth biennial update report to the United Nations फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज UNFCCC. उसके अंडर में बायनुअल मतलब हर एवरी वन अनदर ईयर एवरी 2 year India is sending its update report, and in that what it said कि India's greenhouse gas emission decreased by 7.93% in 2020 with respect to 2019. India's forest and tree cover along with other land use sequestered approximately 522 million tons of CO2, equivalent to reducing 22% of the country's total carbon dioxide emission in 2020. Between 2005 and 2020, India's emission intensity of gross domestic product reduced by 36%. So you should know कि emission intensity of gross domestic products. It is the GHG emission per यूनिट जीडीपी. तो मतलब एक यूनिट जीडीपी के प्रोडक्शन में कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है, दैट इज शोन बाय एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. As of October 2024, share of non-fossil fuels in installed electricity generation capacity was 46.52%, and during 2005 to 2021, additional carbon sink of 2.29 billion tons of CO2 created through forest and tree cover. So this is the important update. India sent its fourth biennial update report to the UNFCCC. You may get some direct statement in the one of the options of the questions. So this is the first news. Now let us see second news. This is the important news. As Union Home Minister and Minister of Cooperation, Sri Amit Shah chairs a review meeting of the National Cooperative Organic Limited as the Ministry of the Cooperation. सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अमित शाह चेयर कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम की चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिकॉज यूपीएससी बार बार ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली उठा के उसमें से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं. सो लेट अस सी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड. सो इसके बारे में पीआईबी कवर नहीं करता है, लेकिन हमको उनकी साइट पे जाना पड़ता है, हमको वहां से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट डायरेक्टली गिविंग the questions on the basis of the just PIB document. So I collected some information, important information regarding that National Cooperative Organic Limited from the website itself. And let us see that National Cooperative Organic Limited has been registered on 25th January 2023 under the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 with the approval of the Union Cabinet and notified as the National Cooperative Society on 21st March 2023 by the central government under the IBD Act. So कौन से अंडर द कौन से एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वो हमको याद रखना है. सेकंड थिंग, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एनसीओएल, इसका शॉर्ट फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अग्रीगेशन, प्रोक्योरमेंट, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफिकेशन, प्रोक्योरमेंट, टेस्टिंग, ब्रांडिंग ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. विजन क्या है, सरकार से समृद्धि इज द विजन. उसका विजन यहाँ पे विजन दिया हुआ है, टू एक्ट एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑपरेटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड डेवलप ए कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनिक वैल्यू चेन. वो उनका विजन है. मिशन, वन ऑफ द मिशन इज टू बी अमॉन्ग्स द टॉप 3 ग्लोबल ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट ब्रांड इन द नेक्स्ट 10 years. टॉप 3 ग्लोबल ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट ब्रांड इन द नेक्स्ट 10 years, वो उनका मिशन है. द यूपीएससी ये डायरेक्टली स्टेटमेंट मिशन में से एक दो स्टेटमेंट उठा के डायरेक्टली वहां पे ऑप्शंस में रख देगी. सो आपने ए पढ़ के गए हो तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे. ए है ऑब्जेक्टिव, वो भी ध्यान में रखिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज द मेंबरशिप. उसके मेंबर कौन बन सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने दिखाया कि एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
will be eligible to become member of the NCOL provided such member society is committed to the promotion of organic farming and conforms to the membership provision as contained in the bylaw of the NCOL. Farmers Producer Organization registered under any cooperative act can also become member of the NCOL. तो ध्यान में रखना है FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है वो भी उसके मेंबर बन सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड. तो वो इस बार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार पढ़ के जाइएगा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड न्यूज. थर्ड न्यूज इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. तो यूपीएससी क्या करेगी, वो डायरेक्टली दे देगी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड टू व्हाट. मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, आपको पता होना चाहिए कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके बारे में बात कर रहा है. वो है एम्पावरिंग इंडिया रिसर्च इकोसिस्टम के बारे में है कि इंडियन रिसर्च इकोसिस्टम में जो रिव्यू करना पड़ता है, रिव्यूज पेपर स्टडी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्रिप्शन होते हैं. तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंडर में पूरा एक सब्सक्रिप्शन होगा पूरे इंडिया का, और अंडर विच सब्सक्रिप्शन ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज कैन एक्सेस द रिसर्च पब्लिश्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. So that is the through the cabinet decision, the one nation cabinet approves one nation and one subscription scheme. So 6,000 करोड़ रुपीज उन्होंने अलोकेट किए है उस मिशन के लिए. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक बात ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फ्लीनेट उसका शॉर्ट फॉर्म है. एंड वो क्या है कि ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है. तो वो एक ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन कौन करेगा. बाकी आपको ध्यान रखना है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके बारे में है, वो रिसर्च के बारे में है. नाउ लेट अस सी वन अनदर न्यूज, दैट इज द टोबैको बोर्ड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपोर्ट रीच. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टोबैको फार्मर इनकम डबल्ड ऑल द लास्ट 5 years, वो न्यूज है. तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है. पहले तो टोबैको बोर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है, फोकस कहाँ पे कर रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम एग्जाम पर्सपेक्टिव के. तो टोबैको बोर्ड के बारे में जानिएगा कि वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 January 1976 बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, टोबैको बोर्ड एक्ट 1975. तो अगर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बना है दैट मीन्स कि टोबैको बोर्ड इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड it is the responsible for the overall development of the tobacco industry. और इस बोर्ड का रोल क्या है, the board's primary role is to ensure the smooth functioning of the farming system and to ensure fair and remunerative price for tobacco farmer and the promotion of exports. And one और two important facts इसमें दिया हुआ है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एफसीवी टोबैको इन द वर्ल्ड. मतलब एफसीवी टोबैको जो सिगारेट्स में जो टोबैको यूज होता है उसको बोलते हैं एफसीवी टोबैको, और उसके प्रोडक्शन में फोर्थ है, जहां ओवरऑल टोबैको के प्रोडक्शन में सेकंड है आफ्टर चाइना, और एफसीवी टोबैको में फोर्थ है आफ्टर चाइना, ब्राजील एंड जिम्बाब्वे. एंड अनदर फैक्ट, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको आफ्टर ब्राजील. तो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में क्वांटिटी टर्म्स में आफ्टर ब्राजील सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. तो एक बार यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. तो देयर आर मेनी बोर्ड्स, सो लेट अस क्विकली रिवाइज. देयर इज अ कमोडिटी टोबैको, फॉर द टोबैको लिए बोर्ड है टोबैको बोर्ड. वो स्टैब्लिश हुआ है 1976 में और उसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश. जैसे कॉफी के लिए कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया 1942 में स्टैब्लिश हुआ है, उसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका. टी के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया 1953, उसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल. रबर के लिए रबर बोर्ड 1947 केरला में स्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर है. स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया 1987 में और उसका केरला में हेडक्वार्टर है. कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड 1981, उसका केरला में हेडक्वार्टर है. अरेका नट एंड कोकोआ वो 1979 कोची केरला में उसका हेडक्वार्टर है, उसका बोर्ड का नाम है अरेका नट एंड कोकोआ डेवलपमेंट बोर्ड. सिल्क के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड 1948 बेंगलुरु कर्नाटका में. कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 1955 में स्टैब्लिश और उसका भी हेडक्वार्टर केरला में है. तो ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ला के रख दी है क्योंकि आप अच्छे से क्विकली रिवाइज कर पाओ और एग्जाम में अगर आ रहा है क्वेश्चन तो आप रिप्रोड्यूस कर पाओ. ठीक है. Now one another news, Ministry of Youth Affairs and Sport announced National Sports Awards 2024. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे यूपीएससी ने भारत रत्न के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि तो ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 भी इम्पोर्टेंट है. वो कौन
इशू वो कौन देता है, अनाउंस कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस करती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, वो ध्यान में रखिएगा। और बेसिकली कौन से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है वो देखते हैं, वो गिवन एवरी ईयर, वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एवरी ईयर दिए जाते हैं। और उसमें कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, इज गिवन फॉर स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट बाय अ स्पोर्ट पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ द प्रीवियस 4 years। Arjuna Award for outstanding performance in sports and games is given for good performance over a period of the previous 4 years and for showing qualities of leadership and sportsmanship and sense of the discipline के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। दूसरा है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम इज गिवन फॉर ओनर and motivate those sport person who have contributed to sport by their performance and continue to contribute to promotion of sports even after their retirement for फ्रॉम एक्टिव स्पोर्टिंग करियर। तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट दे आर कंट्रीब्यूटिंग, उनको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम इज गिवन टू द कोचेज फॉर डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क ऑन कंसिस्टेंट बेसिस फॉर अनेबलिंग स्पोर्ट पर्सन टू एक्सेल इन इंटरनेशनल इवेंट्स। द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज गिवन द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो ये ध्यान में रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको किस किस के लिए दिया जाता है, यूपीएससी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकती है। ठीक है। उसके बाद एक न्यूज है महाकुंभ 2025 कंटिन्यूअसली न्यूज में चल रहा है। 25 महाकुंभ 2025 कंटिन्यूअसली न्यूज में चल रहा है, तो उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता चाहिए। जैसे कि महाकुंभ मेला इज एवरी 12 ईयर्स होता है और मतलब वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्टिव एक्ट ऑफ फेथ है, सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स ओवर द 12 ईयर्स। मतलब महाकुंभ कुंभ मेला होता है एवरी 3 ईयर्स और मतलब वो 4 सिटी के बीच में वेरी होता है। जैसे हरिद्वार में होता है एक बार एवरी 3 ईयर्स, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है और प्रयागराज में होता है। वो एक बार हरिद्वार में हुआ 3 साल के बाद, दूसरे 3 साल के बाद उज्जैन में होगा, दूसरे 3 साल के बाद नासिक में होगा, चौथे 3 साल के बाद प्रयागराज में होगा। और एवरी आफ्टर 12 ईयर्स देयर इज महाकुंभ होता है, कुंभ मेला एवरी 3 ईयर्स, महाकुंभ एवरी 12 ईयर्स। और इसको भी देख लीजिएगा कि हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, उज्जैन अलोंग दिस शिप्रा रिवर एंड नासिक गोदावरी के नजीक है और प्रयागराज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड द सरस्वती। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 12 ईयर्स और कुंभ एवरी 3 ईयर्स और कौन से लोकेशन कहाँ पे होता है और उसके रिलेटेड रिवर्स क्या क्या है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, यूपीएससी अगर ट्रैप करेगी तो उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। सेकंड थिंग, डीएफएस सेक्रेटरी लॉन्चेस रिवैम्प्ड बैंक नेट। तो मतलब हमको क्या करना है, उसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्म में आ सकता है कि बैंक नेट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो हमको पता होना चाहिए इट इज द ई ऑक्शन पोर्टल फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन। जैसे बैंक अगर प्रॉपर्टीज का ई ऑक्शन करती है और उसके लिए एक पोर्टल बनाया है, वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। वो इंक्लूड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सच एज फ्लैट, इंडिपेंडेंस हाउस, ओपन प्लॉट्स एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल लैंड, बिल्डिंग, शॉप्स, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड उसमें कवर होती है। सेकंड न्यूज, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पार्टनर विथ मीरा बहंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर थ्रू द फरल सखी इनिशिएटिव। तो उसमें से पूछ सकते हैं कि फरल सखी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट। तो दैट इट इज फॉर फोकसेस ऑन सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर इन ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन। तो वो किसके लिए है, सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर इन ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन। वो कहाँ पे अभी कॉन्सेप्चुअलाइज किए गए हैं, मीरा भायंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और उसका पर्पज तो हमने देख लिया, सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन। तो ये पढ़िएगा। और उसमें एक चीज ये है कि जो मीरा भायंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एमबीएमसी, उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है नीति आयोग का, उसके साथ कोलैबोरेट करके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो हमको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानने की जरूरत है क्योंकि नीति आयोग एक इम्पोर्टेंट है। तो वुमेन WEP is incubated in नीति आयोग in 2018 as a aggregator platform, transition into a public-private partnership into 2018। पहले नीति आयोग में 2018 में एज ए aggregator प्लेटफॉर्म इंक्यूबेट हुआ था और फिर ट्रांजिशन हुआ उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। उसका एम क्या है, एट एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय ओवरकमिंग इंफॉर्मेशन असिमेट्री एंड प्रोवाइडिंग कंटिन्यू support of across different pillars like access to finance, market linkage, training and skilling, mentoring and networking, compliance and legal assistance, and business development services।
ये न्यूज है, हमको पता होना चाहिए। फरल सखी इनिशिएटिव किसके बारे में है? इट इज सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर इन ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हुआ इसका न्यूज। उसके बाद देखते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज, इट इज अबाउट द ओएनडीसी इनिशिएटिव। सो बेसिकली ओएनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है? डिजिटल कॉमर्स री इमेजिन्ड फॉर इंक्लूसिविटी एंड इनोवेशन। इंक्लूसिविटी आई है और इनोवेशन आई है दिस इनिशिएटिव से। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। वो डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। तो वो पूछ सकते हैं कि ओएनडीसी इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव बाय डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट का है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। और उसमें एम क्या है? एम डेट डेमोक्रेटाइजिंग डेमोक्रेटाइजिंग डिजिटल कॉमर्स, launched in April 2022. इसका aiming at promoting open network for all aspect of exchange of good and service over digital and electronic networks. तो ये हमको पता होना चाहिए ONDC नेटवर्क के बारे में। और दूसरी चीज, ONDC was incorporated as a non-profit Section 8 company and it and incubated at the Quality Council of India. तो मतलब ये एक ONDC नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इंक्यूबेटेड एट द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो हमको उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो बेसिकली लेट अस सी ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया was established through a cabinet decision in 1996. तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया neither statutory nor constitutional body. It was set up through the PPP model as an independent autonomous organization. और Indian with the support of Government of India and the Indian industry represented by the 3 premier industry association. उसके बारे में रिप्रेजेंटेड होती हैं, जैसे कि एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो QCI is non-profit organization under the Societies Registration Act of 1860. And Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry was designated as a nodal point for all the matter connected with the quality and QCI to structure and help implementation of the cabinet decision. तो एक बार ध्यान रखिएगा कि जो ONDC इनिशिएटिव है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही, डीपीआईटी डिपार्टमेंट इसका है, लेकिन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नोडल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। वो दो डिपार्टमेंट अलग है, दोनों डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है। सेकंड थिंग, उसका इसका काम क्या है कि इन द ऑल इंपॉर्टेंट स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, environment protection, governance and social sector, infrastructure sector, such other areas of organized initiative that have significant bearing in improving the quality of life and well-being of the citizen of India. इस एरिया में ये क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वर्क कर रही है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि शायद वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पूछ रहे हैं तो वो डायरेक्टली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में दे देंगे और नीचे 2 से 3 स्टेटमेंट रहेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क शो के स्केल एंड एम्बिशंस ऑफ इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल्स, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने बोला है। तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन ओमकारेश्वर इन मध्य प्रदेश। तो ये न्यूज वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, एंड दैट इज ओमकारेश्वर इन मध्य प्रदेश में। Now let us see one more news. It's about the Indian groundwater revival. तो एक चीज हमको उसमें से ध्यान रखनी है पहले तो कि Indian in 2024 total annual groundwater recharge experienced a significant increase in 15 BCM billion cubic meter while extraction decreased by 3 BCM. तो मतलब रिचार्ज ज्यादा हुआ है और एक्सट्रैक्शन कम हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है। वो किसने बताया? कि ग्राउंड वाटर रिपोर्ट्स ने। तो मतलब ये रिपोर्ट्स कौन सा है? Central Groundwater Board in collaboration with State Groundwater Department releases annual report on groundwater resources. तो annual report on groundwater resources का जो रिपोर्ट्स है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है CGWB इन कोलाबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट रिलीज करती है, और इसका नाम है रिपोर्ट्स का नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ द इंडिया 2024। तो हमको ध्यान रखना है कि रिचार्ज में इंक्रीज हुआ है और एक्सट्रैक्शन डिक्रीज हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज 2017 में 432
430 BCM था, अब 2024 में 446.90 BCM हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग, वो रिपोर्ट ने वो भी बताया है कि 81% ऑफ द ग्राउंड वाटर सैंपल आर सुटेबल फॉर द इरिगेशन विथ 100% ऑफ ग्राउंड वाटर सैंपल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट being rated excellent for irrigation. 81% of the groundwater sample are suitable for irrigation है, और 100% of the groundwater sample from the northeastern state being rated excellent. Other other than this, there are few groundwater initiative like in the मनरेगा include water conservation and water harvesting sector enhancing rural water security. जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च हुआ था. Now it is in fifth phase. Catch the Rain is the campaign under the Jal Shakti Abhiyan, focusing on rainwater harvesting and water conservation across rural urban districts through convergence of the various schemes. अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0, उसको भी 10 साल हुए, एक बार देख लेना. अटल भूजल योजना टारगेट्स वाटर स्टेट ग्राम पंचायत इन 18 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 7 स्टेट, फोकसिंग ऑन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. वो भी एक इम्पोर्टेंट है. और एक इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और उसके हर खेत को पानी भी उसका एक कंपोनेंट है अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. मिशन अमृत सरोवर भी इंपॉर्टेंट है. उसका एम्स है टू क्रिएट रिजुनेट 75 अमृत सरोवर इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन. तो पूछे कि मिशन अमृत सरोवर इज रिलेटेड टू व्हाट? टू रिजुनेट 75 अमृत सरोवर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. So this is all about the January 2025 week 1 PIB quick review. Thank you so much.